गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी अपनी अपनी प्रेजेंट करिएगा और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक वीडियो है, उसे आप देखिएगा। We all have mental health. It is just as important as physical health. It is not only about mental illness or mental disorders. This is just one part of a bigger picture. It's best to think about mental health as being on a continuum, rather than people being either mentally ill or mentally well. We are all on the continuum, and we move up and down according to factors such as our genetic makeup and upbringing, our life circumstances, and the stresses we are under. At one end of the continuum, we have mental disorders, like depression or anxiety. And at the other end, we have states of positive mental health, when we're thriving, content, and fulfilled. The aim of mental health interventions is to move people up the continuum, so that they're able to reach their full potential and live satisfying lives. The World Health Organization describes mental health as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. Being mentally healthy means being resilient and able to cope with difficult times, feeling in control, being confident, feeling good about yourself, managing and expressing your emotions, building and maintaining good relationships. We all experience periods when we feel stressed, worried, anxious, sad, afraid, or angry. These are all normal emotions. However, when these emotions become severe enough that it interferes with the person's ability to function daily, and these feelings become persistent over time, then it can develop into a mental health problem. There are many different types of mental disorders. When left untreated, mental disorders can be chronic and long-lasting, and are associated with increased disability. They significantly have an impact on daily functioning and frequently interfere with family, social, and work responsibilities. Fortunately, there are effective treatments and evidence-based interventions available that aim to help individuals understand and cope with symptoms of mental illness. However, very few people with mental disorders access existing treatment services. This may be due to barriers such as the stigma attached to seeking help, the lack of understanding of mental health problems, uncertainty of how to get help, or the fear of disclosing mental health problems. Research shows that stigma remains one of the biggest factors preventing people from seeking help early for their mental health problems and getting the appropriate support they need. It is important to acknowledge that we all have mental health and have a personal responsibility to learn how we can improve and maintain our well-being in order to lead meaningful and satisfying lives. Want to learn how you can do this? Great news! Why not join one of our communities and keep exploring Maudsley Learning online? हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक वीडियो आपके सामने मैंने अभी दिखाया। इस वीडियो के थ्रू हमें ये बताया गया है कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारी इनर प्रोग्रेस के लिए, और साथ में हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए, इसके लिए मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम काफ़ी चीज़ों से परेशान होते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने नॉर्मली आपको दिखाया है। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर ऐसा कोई बर्डन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। कई बार देखा होगा कि जब हम किसी बात की चिंता करते हैं, फिक्र होती है हमें, तो वो चीज़ बहुत बढ़ जाती है, वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए। सोचना अच्छा है, सोच में डूबना और उसके प्रति नेगेटिव सोच लेना
या ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, या मेरा नुकसान हो जाएगा या मेरा फायदा हो जाएगा, इस तरह से हमें अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है। फ्री माइंड रहना है, अच्छे मूड में रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने करियर के लिए फोकस करना है। चलिए, ये आज की बात थी। आज हम स्पेशल क्लास जो ले रहे हैं उसमें दो चीजें हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, बाकायदा आपको दिखाऊंगा कि हमें क्या करना है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी को, एक बार देखिए। यस सर। आपको Yes, sir. जहां स्क्रीन शेयर हो रही है Yes, उस sir. स्क्रीन को देखिएगा। मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ एक Yes, ग्रुप sir. बना रखा है मेरे ऑफिशियल लेटर्स का। इसमें एक तो आपको देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने आपको क्लास के ग्रुप में भी डाला है, आज आजकल में ही डाला है। देखिए, ये डाला है मैंने, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 6, 7, 8 के लिए मिड टर्म यानी अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये खत्म हो चुकी है। इसके तहत विषय परक परीक्षा जो 40 अंकों की होती है, और सीसीटी पर आधारित जो 15 नंबर की होती है। आई थिंक 6 और 7 का सीसीटी पेपर लग चुका है। क्या 8 क्लास ने सीसीटी पेपर दिया है? 8 क्लास ने सीसीटी पेपर नहीं दिया है ना? 15 नंबर का पेपर नहीं दिया है। तो बेटा 8 क्लास के लिए सीसीटी पेपर बाकी है, आपको मैं शेयर करूंगा। परिधि, आपने पेपर दिया है क्या? परिधि, दक्ष, सीसीटी पेपर 8 क्लास ने नहीं दिया है। 15 नंबर का एक पेपर था। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा सब लोग? हमने नहीं दी है। Yes, sir. सर हमने क्लास भी 8 लिख के यस सर। था लिखा है। तो कौन सी क्लास ने दिया है सीसीटी का पेपर? सर हमने क्लास सेवन क्लास सिक्स और सेवंथ ने दिया है। चलिए, जिन बच्चों ने, सुन लीजिए अब ध्यान से बेटा। पहले तो अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। आप वीडियो ऑन करके बैठिए। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो वीडियो ऑन करके कहिएगा मुझे। देखिए, सबसे पहले सुनिए मेरी बात को। 6 और 7 का सीसीटी बेस पर 15 मार्क्स, 15 नंबर का एक पेपर भेजा था मैंने, वो आपने किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है, ध्यान रखना, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 40 नंबर का ये पेपर, इसके मार्क्स होते हैं। 15 नंबर के आपके एमडीपी, आपकी लर्नर्स डायरी और सब्जेक्ट एनरिचमेंट, होमवर्क और नोटबुक करेक्शन और सीसीटी, इन सब के मिला के 60 क्वेश्चन, 60 नंबर है। तो टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है आपका। 100 नंबर के पेपर में अकेले 40 नंबर का टेस्ट होता है आपका रिटर्न वाला। बाकी की चीजें कौन करेगा? आपको ही करनी है। तो क्या क्या करना है इसमें? एमडीपी को तैयार करना है। सुन लीजिए, नोट करते रहिए। जो चीजें मैं बोल रहा हूं आप बस लिखते जाइए। 1 नंबर पे एमडीपी आपको तैयार करनी है। दूसरा, लर्नर्स डायरी आपको तैयार करनी है। उसका आपको पीडीएफ भी भेज चुका हूं मैं, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं आपको भेज चुका हूं। बस आपको करना क्या है, जिस हिसाब से हमारी इंटरेस्ट है, हमारी रुचि है, हमारे शौक हैं, या हमारी जो क्वालिटीज है, हमारे जो गुण हैं, हमारी जो लिमिट्स हैं, उन सब को आपको वहां लिखना है। अपनी फोटो भी उसमें लगानी है। वो बेटा जमा होने यहाँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी में, और देखो वहां पे आपको एक चीज लिखी होती है, माई लर्निंग, आपने क्या सीखा। तो बेटा इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड-19 के समय में, आपने उस लर्नर डायरी में ये लिखना है कि मैंने अब इतने दिनों में क्या क्या सीखा। घर पे रहा तो मुझे क्या बनाना आया, क्या बनाना मैंने सीखा। पढ़ाई की तो कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, ये सभी चीजें आप एक्सपीरियंस में वहां लिखिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना लिख सकते हैं आप लिखिए। ये सब सबमिट होने हैं। तो पहला लिख लिया होगा एमडीपी, दूसरा लिख लिया होगा लर्नर्स डायरी, तीसरा लिखिएगा जो भी गतिविधियां हैं जो स्कूल में हुई हैं, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, ऑनलाइन हो, या कोई डे फेस्टिवल हो, या कोई सेमिनार हो, कोई भी तरह का कॉन्टेस्ट हो, अगर आपने उसमें भाग लिया है तो उसका रिकॉर्ड बना लीजिए। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। आप इस साल की, ध्यान रखिएगा, कब से शुरू करनी है? कब से शुरू करनी है?
अप्रैल से शुरू करके और अक्टूबर तक आपने जितनी गतिविधियों में भाग लिया है, किस किस गतिविधियों में भाग लिया है, कौन कौन से कॉन्टेस्ट हुए हैं, उनका रिकॉर्ड आप एसएसटी की नोटबुक में लिख के रखें। जब आपसे पूछा जाएगा, आपको सबमिट करवाने की बात होगी, तो ध्यान रखना लास्ट में, ईयर के एंड में उनके मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा देखिए और क्या चीजें हैं, एमडीपी, लर्नर्स डायरी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। आगे का पॉइंट लिखिए, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में क्या है, आपको एक सिलेबस भेजा है, मैंने पहले भी कई बार भेजा है। एसएसटी का आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में चैप्टर वाइज, ध्यान से सुनिए, सिलेबस में चैप्टर वाइज एक्टिविटीज दे रखी है, चैप्टर वाइज एक्टिविटीज दे रखी है। उन सभी एक्टिविटीज को पूरा करना है। हर चैप्टर की हर एक एक्टिविटी को आपको पूरा करना है। मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि कौन सी एक्टिविटीज है जिनको करना है, और वो बेटा सभी को अनिवार्य रूप से करनी है, हर एक स्टूडेंट को करनी है, उसका रिकॉर्ड स्कूल में जमा होना है। पिछली बार ये था कि एग्जाम नहीं लगी, आपको प्रमोट कर दिया गया। इस बार सीबीएसई ने और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये निर्णय किया है कि अब की बार किसी को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। रिटर्न पेपर के अलावा भी प्रोजेक्ट होंगे, लर्नर्स डायरी होगी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज होंगी और होमवर्क भी होगा। तो इन सब के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लास्ट में आता है आपका हॉलीडे होमवर्क। नोट करिए, होमवर्क हॉलीडे वाला जो आपका ऑटम ब्रेक है, आपकी 9 तारीख से छुट्टियां होंगी। 9 को सेकेंड सैटरडे होगा, 10 को संडे होगा और 11 को ऑटम ब्रेक शुरू हो जाएगा। 11 से 20 तक, 20 तक आपका ऑटम ब्रेक रहेगा। आपको मिलते हैं पूरे 12 दिन। 12 दिन में आपको क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से नोट करके। क्लास 6, 7th और 8th, इन तीनों क्लासों को इस छुट्टी के दौरान एमडीपी कंप्लीट करना है, लर्नर्स डायरी कंप्लीट करना है, पूरा होमवर्क अब तक जितना पढ़ाया है मैंने वो सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। और 4th नंबर पे जितनी भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो सिलेबस में दे रखी है, अध्याय के साथ साथ दे रखी है आपके स्प्लिट अप सिलेबस के पीडीएफ में, ये चारों चीजें आपको इस वैकेशन के दौरान पूरी करनी है। और 5वीं चीज है आपका एसएसटी का हाफ ईयरली का पेपर, मिड टर्म का पेपर, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब ये मत पूछिएगा सर कौन सी नोटबुक में करें, कोई सी भी नोटबुक में कर लीजिए, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, सिविक्स की हो, किसी भी नोटबुक में आप अपना पेपर पूरा सॉल्व करेंगे देख करके, ठीक है। जिसके आंसर होंगे आप बुक से देख करके उनको सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक तो बात ये जानकारी हो गई। अब आगे चलते हैं, जहां मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा वहां देखिए, मैंने एक आपको कैलेंडर डाला है, आजादी का अमृत महोत्सव डाला है ना, ये कैलेंडर देखा है सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इस कैलेंडर में कुछ एक्टिविटी हैं जो चलेंगी और इनमें आपको भाग लेना है। जैसे आपने अभी एक एक्टिविटी करी थी, आपको याद हो तो, आर्यभट्ट गणित चैलेंज करी थी। Yes, sir. इसी तरह से सीबीएसई अक्टूबर के महीने में, ध्यान दीजिए, रीडिंग चैलेंज ऑन एक्सप्लोरिंग इंडिया, passages on various aspects of our country shall be framed for this reading comprehension competition। इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग तरह से आपको भारत की विशेषताओं का एक पैसेज बना करके आपको सबमिट करवाना है। अभी इस पे आप ध्यान मत दीजिए, केवल इसको रीड करिए और देखिए कि हर महीने एक्टिविटी है तो क्या क्या हमको करना है। चलिए अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आज हम बताने वाले हैं कि आपको एमडीपी में क्या करना है और लर्नर्स डायरी में क्या करना है। एक एमडीपी को मैं दिखा देता हूं, क्लास 6 का ये दिखा रखा है, तो आप यहां से देखिएगा
मैं स्क्रीन से भी बताऊंगा। हाँ, अब आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब इस प्रोजेक्ट को बनाना है तो क्या करना है, पहली चीजें क्या जरूरी है, आपके पास 10 से 15 पेज की एक फाइल होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, आप खुद होने चाहिए। ये 3 चीजें आपको जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? 10-15 पेज की एक फाइल होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और आप खुद। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, उस फाइल में सबसे जो पहला पेज होगा, उस पहले पेज में आप क्या लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर केंद्रीय विद्यालय जामई लिखेंगे। तो नोट कर लीजिएगा बेटा, आप जो पहला पेज लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय जामई। उसके बाद सेशन लिख देंगे 2021-22। फिर लिखेंगे क्लास आपकी 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर इसको लाइन डाल करके नीचे शुरू करेंगे, आप लिखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे मल्टी। इसको आप जिस तरह से रजिस्टर तैयार करते हैं ठीक उसी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। यहां ऊपर केवी जामई सेशन 2021-22, उसके बाद में क्लास, उसके बाद में आप लिखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का। अब देखिए, जैसे आप प्रोजेक्ट लिखेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम आएगा। तो देखिए, प्रोजेक्ट का नाम में क्या लिखना है, ये लिखना है गार्बेज इन गार्बेज आउट स्वच्छ भारत अभियान। द रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत लैंग्वेज। आपको क्या करना है, इनको हिंदी में भी बना सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं, संस्कृत में भी बना सकते हैं। अंदर इस वाले पार्ट को मत लिखना, द रिपोर्ट ऑफ को, केवल आपको टाइटल लिखना है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसकी मदद से देखो पूरा काम कर सकते हो आप, इसकी बस हेल्प लो। जैसे देखो दूसरा है इसमें, क्वेश्चन स्टेटमेंट टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। अब आप अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो, प्रोजेक्ट देना चाहते हो, अब जैसे इसमें यहाँ दे रखा है महात्मा गांधी आइडिया फॉर वर्क, क्लू हिंदी पार्ट नौकर। अब नौकर में, नौकर जो पार्ट है हिंदी का, क्लास 6 में पढ़े हो क्या, नौकर पार्ट पढ़े हो? Yes, उस पार्ट में तो उस पार्ट में इसको शुरू करके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। पहले आपने अपनी टाइटल एंट्री कर दी, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और पहला क्वेश्चन लिखो। ऐसे कामों की सूची बनाओ जो तुम रोज कर सकते हो। तो जो तुम रोज करते हो उन कामों की सूची बना दो, अगले पे चले जाओ। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो, और ये भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं। अरे आसान है ना ये तो। yes sir, अब इनको लिखते जाओ और पूरा करते जाओ। अब जैसे आगे देखो, इसमें ऐसा है डीलिंग विद गार्बेज। अब ये पॉइंट बनाते जाओ, पहले पॉइंट में 4 एक्टिविटी करनी है, दूसरे पॉइंट में डीलिंग विद गार्बेज में क्या करना है तो लिखिए, देखिए इसमें पढ़िए, इंटरव्यू द सफाई कर्मचारी हु कम टू योर हाउस टू कलेक्ट गार्बेज एंड आस्क देम टू डिफिकल्टी दे फेस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। आपको क्या, आप समझिए इस बात को, आप उससे बात करिए, ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड करिए, और आप ऐसे पूछिए कि भाई साहब आप सफाई कर्मचारी हो, आप जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है इधर उधर उसको उठाते हो, आप बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें आती है इन सब चीजों में। तो वो आपको बहुत प्यार से बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि बेटा हमको इस तरह की दिक्कतें आती है, लोग ये कर लेते हैं, लोग इस तरह से रहते हैं। तो इन सब चीजों को कब जानोगे, जब आप उनसे बात करोगे। समझ में आ गया ना? yes sir, एमडीपी प्रोजेक्ट समझ में आया? अब इसमें क्या है, एमडीपी का मतलब जानते हो क्या होता है? एमडीपी का मतलब ये है कि जो सारी सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सब सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। देखो ये साइंस वाले चैप्टर से मिला है, साइंस चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। सोशल साइंस से जुड़ा है, किससे? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से। समझ गए ना? ऐसे देखो आगे वाला चैप्टर, देखो आगे वाला जो ये पॉइंट है वो साइंस के चैप्टर से जुड़ा है। ये देखो साइंस के चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट से जुड़ा है। आगे आओगे तो फिर देखो सोशल साइंस के चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। ये देखिए, तो ये सारी सब्जेक्ट के हैं, केवल एक सब्जेक्ट के नहीं है। बस इन पॉइंट को पढ़ते जाओ
इनका जवाब देते जाओ, पॉइंट को पढ़ते जाओ। फिर लास्ट में देखो यहाँ थर्ड में ऑब्जेक्टिव है, राइट द लर्निंग आउटकम। अब इन चीजों को आपको लिखना नहीं है, देखो ये चीज नहीं लिखनी है, आपको एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटियां कौन सी, ये वाली टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट और ये वाली, इसमें आपको उस प्रोजेक्ट का टॉपिक लिखना है और उसके बारे में लिखना है। किसमें, इस वाले कॉलम में। समझ गए बात को? इस वाले कॉलम में आपको अपनी एक्टिविटी करते जानी है, इस वाले कॉलम में आपको देखो ये लिखा है ना, स्टेटमेंट लिखना है या टॉपिक लिखना है प्रोडक्ट, इसका प्रोजेक्ट का, जो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। ये इसका टाइटल हो गया, ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा या टॉपिक हो जाएगा, उसके बारे में, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के बारे में और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हमको लिखना है। क्यों, देखा इधर आओ, 1 मिनट रुकिए बेटा। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डालो इसमें, वो मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे ना, पासवर्ड वगैरह बनाए होंगे ना सर, वो मम्मी को बताएंगे पासवर्ड। अरे राम, नहीं पासवर्ड दोबारा बनाती होंगी ना आपने, मैंने जब आईडी बनाए थे तब नहीं बनाए थे पासवर्ड। अभी जब दीदी ने पासवर्ड दिए थे आपको, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, हम वापस से बात करेंगे। कौन सा नंबर था वो, ये वाला ना, मुझे दूंगा। जस्ट 1 मिनट वेट करना बेटा सब लोग। अब नया पासवर्ड ये नहीं चेंज हो गया, रुक जाओ थोड़ी देर, यहीं बैठ जाओ, यहाँ चेयर पे बैठ जाओ, बैठ लो यहाँ बैठ जाओ। हाँ, वापस कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे एमडीपी प्रोजेक्ट की, और एमडीपी प्रोजेक्ट में जैसा कि मैं बता रहा था आपको, जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया है, उसी पीडीएफ में क्लास 6 का मैं एमडीपी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि क्लास 6 का जो एमडीपी प्रोजेक्ट है वो किस तरह से करना है। तो टॉपिक समझ गए आप, टाइटल इसका क्या दे रखा है, ये टाइटल है, इसको ऐसे कैसे लिखना है, फर्स्ट पेज कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा कि आपको अपना फर्स्ट पेज कैसे तैयार करना है। उसके बाद एक तरफ इस तरफ आप इन चीजों को पूरे करते रहिए, यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट इनको करिए, इन सबको कंप्लीट करते जाइए। और कहाँ तक कंप्लीट करेंगे आप, यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो दे रखे हैं इसको आप नहीं लिखेंगे, लास्ट में जो मेथड्स हैं किनका आप यूज कर सकते हैं तो आप इनको लिखेंगे कि हमने इन मेथड्स का यूज किया है, किसका यूज किया है वो लिखना है, जिसका यूज नहीं किया उसको नहीं लिखना है। समझ रहे हो ना बेटा, इनमें से जिस चीज का यूज करो केवल उसी को लिखना है। ओके, इसी तरह से इसमें भी आप जिन चीजों का यूज कर सकते हो उनका ही, जैसे कुछ बच्चे पीपीटी बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से बता सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो भी, आप अगर चाहो तो ये पूरा वीडियो में भी बन सकता है प्रोजेक्ट। एमडीपी प्रोजेक्ट को आप वीडियो में भी बना सकते हो, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट देखो, रिसोर्सेज विच द स्टूडेंट्स में रेफर। अब अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे, तो देखो ये सारे रिसोर्स हैं, आपकी क्लास 6 की बुक्स हैं, साइंस की बुक है, सोशल साइंस की बुक है, इंग्लिश की, हिंदी और मैथ्स की, इन्हीं बुक्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। संस्कृत के चैप्टर्स में आपको आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। और अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए आपको, डिजिटल वर्क करना है, तो एक वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में आपको इस प्रोजेक्ट को अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सबमिट कर देना है।
द टीचर इज फ्री टू ऐड और डिलीट एनी ऑफ द एक्टिविटी एज पर द रिसोर्स अवेलेबल विद द स्टूडेंट। तो देखो इसमें कहा गया है कि जो रिसोर्स बच्चों के पास उपलब्ध हो आप उसमें बना सकते हैं। टीचर चाहे तो किसी एक्टिविटी को कम ज्यादा कर सकता है, तो मैंने देखो कम कर लिया है। और इनमें से भी आपको अगर ऐसी कोई एक्टिविटी लगती है तो पहले मुझे बताएंगे कि सर ये एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बताकर, और बाकायदा आप अपने प्रोजेक्ट में इस बात को नोट करेंगे कि हमने कौन सी एक्टिविटी की है और कौन सी एक्टिविटी नहीं की है। नहीं की है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे तो वहां जवाब देना होगा कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे 7th का चैप्टर दे रखा है, 7th का एमडीपी प्रोजेक्ट है, तो सेम उसी तरह से ये है। हाँ बेटा बोलिए। सर हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और कौन सी नहीं, सर इसे हम लास्ट पेज पे लिख सकते हैं? हाँ लास्ट में तो लिखना है, लास्ट में पूरा कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में सबसे पहले लिखिए कि मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी करी है और कौन सी नहीं की है। और फिर अगर मैं देखूंगा जो जरूरी होगी एक्टिविटी वो तो करनी होगी, तो जो नहीं करनी होगी ठीक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, तो उनको मैं चेक करूंगा फिर। ओके ओके सर। ये 7th का प्रोजेक्ट है, सेम उसी तरह से पढ़ के करो बेटा आराम से। ऑब्जेक्टिव्स जो है इनको मत लिखना आप लोग, मैंने पहले भी बताया था। मेथड्स क्या है इन सब का, आपको कुल मिलाकर के आपका प्रोजेक्ट यहीं तक है, 2 पॉइंट तक ही है, 1 और 2 पॉइंट तक ही है। 3rd 4th 5th ये पॉइंट तो सब आपकी मदद के लिए है। आप 8th का भी देख लो, 8th में भी आपको मेजरली देखो 2 पॉइंट तक ही आपका पूरा प्रोजेक्ट है, देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना बेटा, केवल 1 और 2 ही आपका प्रोजेक्ट है, बस केवल पॉइंट नंबर 1 और 2। 1 में तो क्या है उसका टाइटल दे रखा है, और 2 नंबर में क्या दे रखा है, क्या करना है उसमें वो दे रखा है। अब इसके बाद चलते हैं लर्नर्स डायरी पे। अब देखो लर्नर्स डायरी का आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा, ये लर्नर्स डायरी है, एक पीडीएफ है। इसको आप पावर पॉइंट में भी बदल सकते हो, इसको आप वर्ड में भी बदल सकते हो। पावर पॉइंट में और वर्ड में बदलने का फायदा क्या होगा कि इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी फोटो इसमें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है माई प्रोफाइल, सेशन दे रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फोटोग्राफ में आप अपनी फोटोग्राफ पेस्ट कर देंगे, ध्यान रखिए यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। नाम लिखेंगे, क्लास, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कूल एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ब्लड ग्रुप। इसके बाद माई स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ का मतलब ऐसे एरियाज जिन पे मेरी पकड़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, तो किस एरिया में मेरी पकड़ है। इसके अलावा मेरी खुद की कोई खूबी, जैसे मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, मैं अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ, तो इसे हम कहेंगे माई स्ट्रेंथ। आई एम गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, गाने में अच्छे हो, पेंटिंग में अच्छे हो, तो इसको भी आप लिख सकते हो अलग से। जैसे कुछ लोग बोलने में अच्छे होते हैं, आई एम गुड एट स्पीकिंग। कुछ लोग सुनने में अच्छे होते हैं, आई एम गुड एट लिसनिंग। कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, आई एम गुड एट राइटिंग। नेक्स्ट में है माई हॉबी, आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये आप इसमें नोट करेंगे। माई लिमिटेशंस, यानी आपकी हद कहाँ तक है, यानी कितना आप कर सकते हैं। जैसे मैं 40 किलो वजन उठा सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है ना। या मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिमिट में होती हैं, तो आप अपनी लिमिटेशन भी, अब अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। हमें अपने बारे में, हमारी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, हमारी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं, हिंदी बोलना सीखना चाहते हैं, आप ड्राइंग करना सीखना चाहते हैं, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, है ना। तो जो भी बात आप सीखना चाहते हैं वो इसमें डालें। आई वॉन्ट टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा शिक्षार्थी बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो इस तरह की चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ दिया गया है व्हाट डू आई थिंक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, मैं अपनी और सभी सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता हूँ, इंग्लिश के बारे में मेरी क्या राय। कॉपी मत करिए किसी की, अभी 1-2 डायरिया बनाई है बच्चों ने, तो एक जो डायरी बनाई उसी की कॉपी दूसरे ने करी, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी खुद की डायरी बना रहे हैं ना, तो ये तो रिकॉर्ड रहेगा स्कूल में हमेशा, तो इसको अच्छा बनाइए। इंग्लिश के लिए आप क्या सोचते हैं, हिंदी के लिए, मैथ के लिए, इनके लिए आप क्या सोचते हैं,
साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, संस्कृत के लिए। और लास्ट में देखो एक पेज दिया हुआ है माई लर्निंग। माई लर्निंग में करना क्या है, इसमें आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर माई लर्निंग में इतना सब कुछ तो लिख दिया, फिर माई लर्निंग में क्या लिखे। कोविड-19 पेंडेमिक टाइम में पूरे लॉकडाउन में आपने घर में रहते हुए 2 साल आप घर में रहे हैं, स्कूल नहीं आए हैं, तो आपने क्या क्या सीखा है वो आप इसमें लिखेंगे। ये कोविड-19 के ऊपर डायरी है। आपने पहले भी आपने सुना होगा, जब क्लास हम ले रहे थे तो उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि कोविड-19 के एक्सपीरियंस पे आप डायरी बनाना शुरू कर दीजिए, ये डायरी काम आएगी। अब वो इसका इस्तेमाल अब होगा। तो शायद उम्मीद है मुझे आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो पूछ लीजिए बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी लगती है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? सर समझ तो कर सकते हैं ना इसको, प्रोजेक्ट को, लर्नर्स डायरी को। सर उस पे सर इसे फाइल में भी कर सकते हैं और सर पीपीटी में भी। बिल्कुल, लेकिन वो जमा होगी स्कूल में। पीपीटी आप करोगे तो उसका प्रिंट निकाल के आपको अपने पास रखना होगा। यस सर। समझ रहे हो? आप कोई भी काम करोगे ना तो उसका 2 प्रकार आप एक तो मुझे भेजने के लिए आप डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में स्कूल में अगर सबमिट होगी तो उसी का प्रिंट निकलवा सकते हैं। एक तरीका और है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम तो फाइल नहीं बनाएंगे, 10-15 रुपए हमारे बेकार होंगे, नो प्रॉब्लम, मत बनाइए फाइल। आप 8 से 10 पेज आपकी किसी भी नोटबुक में बना लीजिए, उसको किसी भी नोटबुक में बना लीजिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट का है। एमडीपी प्रोजेक्ट जो है ना वो किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, ध्यान रखिएगा, एसएसटी का नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल आपकी मदद के लिए, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। एसएसटी का भी तो है उसमें, एसएसटी के मार्क्स भी तो मिलेंगे। तो सारी सब्जेक्ट के हैं वो, उसको सारे टीचर्स चेक करेंगे। समझ गए ना बात को? एमडीपी प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट का नहीं है, जैसा कि उसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, एक से अधिक विषयों का कार्य। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए। हैव ए नाइस डे। ओके, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। जय हिंद सर। बाय सर। जय हिंद सर। बाय सर, जय हिंद सर। बाय सर। बाय सर। जय हिंद सर। बाय सर। जय हिंद सर। बाय सर। सर सर हाँ जी, बोलिए नंदिनी। प्रोजेक्ट का एमडीपी का ये डाल सर, प्रोजेक्ट का एमडी का प्रोजेक्ट डाल दोगे? हाँ बेटा, अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक, लेफ्ट कर दीजिए बेटा, लेफ्ट कर दीजिए। यस सर।